दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। दिन भर उमस के कारण लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। कूलर एसी भी इस गर्मी के आगे फेल हो गए। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन हवा में बहुत ज्यादा नमी के कारण लोगों को ये तापमान 51.3 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हुआ। रविवार को भी दिन भर गर्म हवाएं चलती रहीं। अब लोगों को इंतजार है राहत वाली बारिश का। Near about 41 degrees centigrade maximum temperature yesterday. We are expecting today also temperatures to be around the same limit. And we are also expecting isolated heat wave conditions over Delhi. Apart from Delhi, also in the neighboring regions, particularly in Haryana, Uttar Pradesh, also heat wave conditions likely during next 2 days. In some places, severe heat wave conditions are also likely in Uttar Pradesh. We are expecting, thundery development and thunderstorm activity and subsequent reduction in the maximum temperatures from tomorrow onwards. So heat wave conditions, there will be some respite from the heat wave conditions in the Delhi region. However, in Uttar Pradesh and Haryana also after 2 to 3 days, temperatures will reduce and we will get some respite from the heat wave conditions. Also, what is this case that temperature is 40 degree or 42 degree, but it feels like a 51 degree Celsius? What is that phenomenon? There's the term we call it as a feel-like temperature also. At times, what it tells is like what your body, your human body feels about the temperature. Actually, the human body has a mechanism of perspiration. That means human body sweats. That sweat evaporates, and our body feels some coolness in this, and get some respite from the heat wave and high temperatures. However, when humidity is on the higher side, this mechanism doesn't work as efficiently as it should, and the sweating happens on the human body, but it doesn't evaporate, that easily because already the air is moist in the environment. So the temperatures what we are feeling, it tends to be on the higher side because our body doesn't feel that coolness because of the evaporation mechanism. So that's what usually in general terms it's called as a feel-like temperature. So that's why sometimes when it's a humid conditions and humidity is on the higher side and also temperature is on the higher side, and you feel even more discomfort due to this kind of weather condition. सर जून का होते आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है उसमें थोड़ी सी भी गिरावट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में और भी कई उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो उत्तरी भाग है वहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर नोट होता है। देखिए, अभी दिल्ली में भी 41 डिग्री यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो अधिकतम तापमान थे कल रिकॉर्ड किए गए। हमारा अनुमान यही है कि आज भी तापमान जो है, अधिकतम तापमान जो है वो इसी रेंज में रह सकते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकते हैं। हीट वेव कंडीशंस भी कुछ एक स्थानों पर दिल्ली में देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसका जो एडजॉइनिंग एरिया बिहार का, नॉर्थ ईस्ट एमपी का है, उसमें भी अगले 1 से 2 दिनों के दौरान जो है हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। हालांकि उसके बाद से इसमें टेम्परेचर्स में गिरावट देखने को मिलेगी और हीट वेव कंडीशन से जो है राहत मिलेगी। जो 51 डिग्री सेल्सियस का जो कल पीक हुआ है वो क्या फिनोमेना है एग्जैक्टली, क्योंकि कल का टेम्परेचर वाज टू हाई। देखिए, एक जो ये फील लाइक टेम्परेचर्स का ये अभी इंडियन कंडीशन में वैलिडेट नहीं हुआ है। हालांकि इसका एस्टिमेट ऐसे निकालते हैं हम कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर है, वो पसीने के माध्यम से अपने आप को ठंडा रखने का प्रयत्न करता है। जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो शरीर से पसीना निकलता है और वो जो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है उसका, तो ह्यूमन बॉडी को ठंडक महसूस होती है। हालांकि ये भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि कितनी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता है जो हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर की हवा है उसके ऊपर। अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो जो इवेपोरेशन हो रहा है ये इतना एफिशिएंटली नहीं होता है। मानव शरीर पसीना जरूर निकालता है, लेकिन जो क्योंकि वो उसका वाष्पीकरण अच्छे से नहीं होता है इसलिए उसको ठंडक महसूस नहीं होती है, और जो एक्चुअल तापमान चल रहा है उससे ज़्यादा तापमान जो है ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को महसूस होता है, जिसको हम फील लाइक टेम्परेचर बोलते हैं। आईएमडी के अनुसार राजधानी में दिन भर हवा में 35 से 63% तक की नमी दर्ज की गई। इस कारण लोगों को असल तापमान से कहीं ज्यादा गर्मी का एहसास हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण दिल्ली में उमस बढ़ गई है। हालांकि राहत की खबर ये है कि सोमवार से मौसम के करवट लेने की संभावना है। ध्रुविन शाह है मेरा नाम, एंड वी आर फ्रॉम यूएसए, और हम लोग इधर घूमने के लिए आए हैं, वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। बेसिकली वी आर कमिंग फ्रॉम गुजरात, और इस बार हम लोग दिल्ली दर्शन करने आए हैं, पर हमको लगता है कि इधर इतनी गर्मी है कि दिल्ली दर्शन तो काफ़ी हो नहीं पा रहा है। इट इज़ वेरी हॉट हियर, और इनफैक्ट पूरे दुनिया में बहुत ही गर्मी है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और हमारे यहाँ पे न्यू जर्सी में भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जितनी अभी होनी चाहिए, वहाँ पे भी बहुत गर्मी है। बट इधर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ऐसा लग रहा है मुझे। कल तो इतनी गर्मी थी कि हम लोग सुबह सुबह 9 बजे भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे।
सो वी आर होपिंग कि जल्दी से बारिश हो जाए और ये गर्मी का मौसम ठंडा हो जाए अभी। जेनी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूएस से आई हूँ। आप यूएस से घूमने आई हैं दिल्ली की गर्मी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत धूप है, हम लोग बहुत पसीना पसीना हो जाता है और बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि हम पैर ही बाहर नहीं जा सकते। मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, और ये बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग है और ये प्लैनेट में बहुत धूप आ रही है। मालतेश है, सर कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से आया, घूमने के लिए? घूमने के लिए आया। दिल्ली की गर्मी में और कर्नाटक की गर्मी में क्या अंतर है? ये कर्नाटक में गर्मी है ना, थोड़ा है, इधर ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। कर्नाटक में 26 ज़्यादा है, इधर है ना 46 है। हाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मौसम विभाग ने सोमवार से शुक्रवार तक दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके लिए मंगलवार और बुधवार को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक बारिश शुरू होने के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी। हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। लखनऊ में भी देर रात मौसम बिल्कुल बदल गया। कहीं तेज आंधी तो कहीं रुक रुक कर बारिश हुई। फिर कल धूप निकलने के बाद पूरे दिन उमस रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बदले मौसम के मिजाज बदलने के साथ अगर पूर्वी हवाओं का असर लगातार बना रहा तो मॉनसून की एंट्री यूपी में अगले 1 से 2 दिन में हो सकती है। इस बीच लखनऊ में मौसम विभाग ने पहले ही हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सुबह से मौसम बदलने के बाद आंधी बारिश का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी यूपी के रास्ते दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की एंट्री होगी। मौसम विभाग ने बताया कि 29 जून तक लू लोगों को परेशान करेगी। इसके बाद मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। जिन इलाकों में बारिश नहीं भी होगी वहां भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इसके चलते 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके कारण चिलचिलाती धूप और लू से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 जून से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून पिछले 16 से 17 दिन से महाराजगंज के पास रुका हुआ है। अब अगले 2 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के यूपी में प्रवेश के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं। आज और कल तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू का असर रहेगा। इस दौरान पूर्वांचल, तराई और कुछ अन्य इलाकों में तेज हवा चलने और मामूली बारिश होने की भी संभावना है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।